So in this slide, we'll go with these topics: introduction, definition, causes, types and degree of prolapse, and how to do diagnosis and investigation, science and with management. So it is one of the common clinical condition met in day-to-day gynecological practice. It is most often seen in multiparous women. It is form of herniation. What is herniation? Herniation में क्या होता है कि एक ऑर्गन अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस हो जाता है, दैट इज द डिस्प्लेस ऑर्गन। तो प्रोलैप्स में भी यूट्रस को, या आप अगर सिस्टोसील जिसकी भी बात कर रहे हैं, तो उस ऑर्गन को जहां होना चाहिए वहां ना होके वो प्रोलैप्स हो बाहर। और इसमें ये क्या है कि दूसरे ऑर्गन की जगह पे नहीं जाता है, ये ओपनिंग इसको बाहर की ओर मिलती है, तो ये बाहर की तरफ दिख जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ हर्निएशन ओनली। एंड इंटरनल पार्ट्स में अगर कहीं हर्निएशन होता है तो इंटरनली एक दूसरे ऑर्गन्स को डिस्प्लेस करने लगते हैं, तो वो टिपिकल हर्निएशन है। एंड हेयर इट इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, सो इट इज अ nomenclature as prolapse। तो आपकी गायनी प्रैक्टिस अगर है तो जनरली एक एज के बाद फीमेल मिल जाती है, और वो भी मल्टी पैरस होने की, मतलब जिनको मल्टीपल बेबीज हैं, क्योंकि वो बार बार डिलीवरी के टाइम पे एफर्ट्स लगाते हुए वो लिगामेंट्स जो है, लिगामेंट्स की यूट्रस में हम लोग ने एनाटॉमी में देखा था, उसको प्लेस पे रखते हैं, तो उसमें इंजरी होते हुए या प्रेशर लगते हुए लूज हो जाते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन प्रोलैप्स। And it is a form of herniation. Uterine prolapse can happen to women of any age, but it is postmenopausal women who had one or more vaginal deliveries. So early ages में भी हो सकते हैं, but most common postmenopausal age. The incidence of prolapse is about 1 in 250 pregnancies. अगर जहाँ पे भी 200 प्रेगनेंसी होती है तो उनमें एक प्रोलैप्स लेके डेवलप हो ही जाते हैं। So uterine prolapse occurs when pelvic floor muscles and ligaments stretches and weaken, providing inadequate support for the uterus. The uterus then slips down into the or protrudes out of vagina. Weakening of the pelvic muscles that leads to uterine prolapse can caused by damage to supportive tissue during pregnancy and childbirth and effects of gravity. तो जो भी सपोर्ट सिस्टम है, पोजीशन अपने पोजीशन पे यूट्रस को हैंग किए हुए, that is stretched and weakened, especially during pregnancy. And what is the reason? That supportive tissue is damaged, and the effect of gravity also, and less estrogen also. So this results in prolapse. And what are the supports of uterus? Round ligaments, broad ligaments, pubocervical ligaments, pelvic floor muscles, and uterosacral ligaments. Just give a quick review of that anatomy slide. Yes, it is a festive season, and social family responsibilities along with your clinical responsibilities. But if you are doing this course or doing this class, just take out 5 minutes किसी भी टाइम पे आप किसी तरह से भी निकालिए, और ये लिगामेंट्स को आप देख लीजिए, तो ये प्रोलैप्स टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। तो दीज आर द लिगामेंट्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस। आप पिक्चर ही इमेज देख लेंगे जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था लिगामेंट्स के, तो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। So uterine prolapse means the uterus has descended from its normal position in the pelvis further down into the vagina. तो जैसा हमने इमेज देखी थी कि यूट्रस जो है वो वजाइना के ऊपर थ्रू लिगामेंट्स अपनी पोजीशन पे रहता है, and in prolapse it descends down from the normal position in the pelvis further down into the vagina. And uterine prolapse is a form of female genitalia prolapse. It is also called pelvic organ prolapse or prolapse of uterus. So here we see नॉर्मली यूट्रस की पोजीशन ये रहती है, आगे ब्लैडर पीछे रेक्टम करते हुए। बट इन हेयर इन प्रोलैप्स ये जो लिगामेंट्स, यहाँ लिगामेंट्स रहते हैं, इसको यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स एंड राउंड लिगामेंट्स, सब इसके थ्रू ये होल्ड बना रहता है,
और प्रोलैप्स में ये पोजीशन नीचे आ जाती है। इसकी भी ग्रेडिंग रहती है, वो जितना लूज रहते हैं उतना नीचे, और इसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग्स होती है प्रोलैप्स की भी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो here is uterus and collapsed uterus. So what are the causes? Birth injury, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, but it is not the only cause. Yes, very much common cause. It is an important cause. A perineal tear is less harmful than the excessive stretching of the pelvic floor muscle and ligaments. Perineal tear अगर होता है तो वो externally visible होता है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इन प्रोलैप्स वो उस समय पे विजिबल नहीं होता है, बट मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद या उसके बाद आप कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटीज करते हैं तो फिर वो और हार्मफुल हो जाता है. हाँ, सो इट इज मच harmful than perineal tear during childbirth because overstretching causes atonicity, whereas torn muscles could be stitched or toned up. ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी, मीन्स वो बार बार मेडिकेशंस भी देने होते हैं एट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, कि जब पेन कॉन्ट्रैक्शंस एकदम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस आए और हेड एकदम डाउन हो, सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो, तभी फीमेल को एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि पेनफुल कंडीशन रहती है तो उसको लगेगा जल्दी रिलीफ हो जाए. सो इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटेंडिंग डॉक्टर कि उसकी काउंसलिंग प्रॉपर करनी है. एंड पेरिफेरल नर्व इंजरी के कारण भी हो जाता है, सच एज pudendal nerve injury during childbirth causes prolapse which is reversible in 60% and it may be responsible for stress incontinence also. तो इस pudendal nerve injury के कारण कई बार रिवर्सिबल होता है और कई बार स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी वो डेवलप हो जाता है. बियर डाउन अफेक्ट, जो हमने अभी बात की कि बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, when the bladder is not empty, beard and efforts नहीं लगाना है. heavy work just after the delivery without any rest or pelvic floor exercises. तो ये जो प्रसूता अवस्था बताई गई है उसमें जो डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं वो नहीं करने हैं, कि प्रसूता का प्रॉपर ध्यान देना है, या गर्भिणी परिचर्या में भी जो चीजें बोली गई हैं तो उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए, और प्रसूतावस्था में भी प्रॉपर रेस्ट लेना है. नहीं तो उस समय क्योंकि बियर डाउन एफर्ट्स जो भी रहते हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में लिगामेंट्स नहीं रहते, तो उसको सेल्फ हीलिंग, जैसे अगर सपोज कुछ फ्रैक्चर होता है तो उसमें या रोल कैसे होता है फ्रैक्चर ठीक होने का, कि वो सेल्फ हीलिंग होती है. बस उसको आपको मोशन नहीं देना है उस पार्ट को जहाँ का भी फ्रैक्चर है. जो प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई करते हैं तो उसका रीजन यही रहता है कि वहां पे मूवमेंट ना हो उस एरिया में. तो प्रसूता अवस्था में सो कॉल्ड की पोस्ट पार्टम पीरियड या फिर पीरियल पीरियड, तो उसमें भी फीमेल को रेस्ट एडवाइस इसीलिए किया जाता है कि वो बॉडी जो है अपने को रिकवर कर सके. एंड डिलीवरी ऑफ अ बिग बेबी that also stretches the perineal muscles and lead to the patulous introitus and prolapse. And precipitate labor and fundal pressure may be responsible for the prolapse. Rapid succession of pregnancies, मतलब multiple pregnancies frequently हो रही हैं, and lack of pelvic support which results in uterine prolapse. So these are the common causes, and other than that some other causes are also there, like weakness. Congenital weakness of the uterus and vagina is the most important positive factors of uterovaginal prolapse इन नलीपेरस वुमेन. तो अगर नलीपेरस वुमेन में प्रोलैप्स दिख रहा है देन जस्ट गो फॉर द कंजेनाइटल वीकनेस, कि उसकी आप फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो उससे आपको आ सकता है. एंड एक्वायर्ड डिफेक्ट्स इन मल्टीपेरस वुमेन, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट्स, ये कुछ जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही है. एंड मेनोपॉजल एट्रोफी, मेनोपॉज के बाद भी हार्मोनल डेफिशिएंसी स्पेशली ऑफ द एस्ट्रोजन, उसके कारण एट्रोफी हो जाती है जनरल ट्रैक्ट की, और उसके सपोर्ट सिस्टम भी वीक होने लगता है. इन वीमेन ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द लिगामेंटल सपोर्ट ऑफ यूट्रस एंड वजाइनल प्रोलैप्स डेवलप. And the uterovaginal prolapse is aggravated by small fibroids or traction of the uterus. कुछ एक्टिवेटिंग फैक्टर्स रहते हैं लाइक फाइब्रॉइड्स या ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, उसमें भी हो जाता है, पेल्विक ट्यूमर्स में भी. And in some women have softer connective tissue than others, which means the ligaments that support the pelvic organs loosen more easily. They are more prone to stretching during pregnancy and childbirth, so there may be the
higher risk of developing a prolapse. So these are the conditions कि soft connective tissues हैं उनकी by nature ही वो soft है relatively, so it results in prolapse. Now normal position of the uterus we can see in the first figure, that is of the retroverted uterus and anteverted uterus. Retroverted and anteverted हमने सब anatomy में देखा. Just give a quick review. Which one is normal, retroverted or anteverted? Or you can say most common position. Any of you? Just go through those slides of anatomy. You'll get all the answers. और एक क्विक क्वेश्चन राउंड होगा नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में. And types of prolapse, uterovaginal prolapse. It is the prolapse of uterus, cervix and upper vagina. That is the commonest type and is accompanied by cystocele. तो यूट्रस के साथ साथ सर्विक्स और अपर वजाइना का भी हो रहा है और सिस्टोसील दैट इज यूरिनरी ब्लैडर भी अकम्पनीड है. congenital prolapse में सिस्टोसील नहीं रहता है जनरली. often seen in nulliparous, so called as nulliparous prolapse. तो congenital prolapse का एक कॉमन टर्म एज ए नल्लीपेरस प्रोलैप्स ही कहते हैं और इसका रीजन congenital वीकनेस है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्स. एंटीरियर वजाइनल वॉल की अगर सपोर्ट सिस्टम लूज होता है तो उसके कारण पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का या यूटेरिन डिसेंट. In anterior vaginal wall, upper 2/3 of cystocele and lower 1/3 of urethrocoele. So it is cystourethrocoele. कि एंटीरियर वजाइनल वॉल की तरफ से जो सपोर्ट सिस्टम यूज होता है एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर भी अटैच रहता है. ये मैं बार बार कह रही हूँ और अभी फिर कहूंगी कि जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस स्लाइड्स ऑफ एनाटॉमी. तो ये प्रोलैप्स टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो उसके एंटीरियर बाउंड्रीज में यूरिनरी ब्लैडर रहता है. तो उसके अपर 2/3 का अगर प्रोलैप्स होता है तो वो सिस्टोसील है और लोअर 1/3 भी अगर इन्वॉल्व होता है प्रोलैप्स में देन इट इज क्योंकि उसमें नीचे की तरफ यूरेथ्रा है तो वो यूरेथ्रोसील है. और अगर कंप्लीट है प्रोलैप्स तो सिस्टोयूरेथ्रोसील है. पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में अपर 1/3 है तो पाउच ऑफ ड्यूगलस तक खानिया होते हैं देन इट इज एंटेरोसील और लोअर 2/3 का है देन इट इज रेक्टोसील. यूटेरिन डिसेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऐसा करके इसका डिफरेंशिएशन होता है. here you can see in the figures. सबसे पहले नॉर्मल ये नॉर्मल पोजीशन इसमें शो कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट डिग्री की, इसमें सेकंड डिग्री की, इसमें थर्ड डिग्री की और यहाँ पे है प्रोसिडेंशिया. सो इन फर्स्ट डिग्री डिसेंट ऑफ सर्विक्स इन द वजाइना. तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ सर्विक्स पार्ट ही वजाइना की तरफ आया है. एंड इन सेकंड डिग्री द डिसेंट ऑफ सर्विक्स टू द इंट्रोइटस. तो सर्विक्स इसमें इंट्रोइटस तक आ गया है और थर्ड डिग्री में वो इंट्रोइटस को भी क्रॉस कर गया है. एंड इन प्रोसिडेंशिया ऑल द यूट्रस आउटसाइड द इंट्रोइटस. मतलब वो पूरा यूट्रस ही बाहर की तरफ आ गया. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में हम लोग सर्विक्स से कोरिलेट करते हैं बट इन प्रोसिडेंशिया वो कम्प्लीटली बाहर की तरफ रहता है यूट्रस. और ये सब कितने डिग्री लिगामेंट में इंजरी आई है या लूजनिंग आई है उस पर ही देखते हैं. नॉर्मल एनाटॉमी. here we can see यूट्रस सर्विक्स. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में ये सर्विक्स जितना क्रॉस करता है उसके अकॉर्डिंग होता है और पूरा यूट्रस जब आ जाता है बाहर की साइड देन इट इज प्रोसिडेंशिया. ये ब्लैडर पोजीशन है. और सिस्टोसील एंड यूरेथ्रोसील में वो ब्लैडर कितना डिसेंड किया है अपर 2/3 और लोअर 1/3 उस पर डिपेंड करता है. एंड बिहाइंड दैट रेक्टम. और इस फिगर में ये ब्लैडर आप देखिए नॉर्मली ब्लैडर की पोजीशन यहाँ है बट हियर इट इज डिसेंडेड.
So it is bladder prolapse or cystocele. And here in this figure, ये that rectum is prolapsed, that is rectocele, or here it is uterus is herniated, uterine prolapse. तो anterior wall अगर लूज होती है, bladder आता है, cystocele, uterine prolapse, and rectocele from posterior side, weakening of muscles. Oh, sorry, ligaments. So here you can see cystocele and urethrocoele. यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, ये नॉर्मली इसको यहाँ पे लोकेट होना चाहिए था यूट्रस के साथ, बट ये डिसेंट हो चुका है, और यहाँ पे यूरेथ्रा जो है नॉर्मली इस तरफ इसको होना चाहिए, यूरेथ्रा डिसेंट हो चुका है, सो इट इज यूरेथ्रोसील. और हेयर ऑल्सो अपर 1/3 ऑफ पोस्टीरियर साइड, यहाँ पे अपर 1/3 डिसेंट हुआ है, और इस तरफ और लोअर 1/3. So it is enterocele and rectocele. So normal female pelvic anatomy, uterus in between, anteriorly by bladder and urethra, and posteriorly by rectum. और इन तीनों में से किसी का भी प्रोलैप्स हो सकता है. If it is prolapse of bladder or urethra, then it comes under the cystocele or urethrocoele, और cystourethrocoele अगर दोनों को होता है. यूटेरिन प्रोलैप्स अगर यूटेरस प्रोलैप्स होता है, उसके लिगामेंट्स लूज होते हैं. रेक्टोसील या एंटेरोसील अगर पोस्टीरियर साइड के लिगामेंट्स लूज होके वहां का प्रोलैप्स होता है. So in third degree, the uterine cervix and body descends to lie outside the intra-aortus. It is also known as प्रोसीडेंशिया और कंप्लीट प्रोलैप्स. उसके बाद अगर पूरा यूट्रस बाहर की साइड आता है, प्रोसीडेंशिया इज प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस विथ इवर्जन ऑफ एंटायर वजाइना. इट इज इनएविटेबली एसोसिएटेड विथ सिस्टोसील एंड एंटेरोसील. तो जनरली प्रोसीडेंशिया की कंडीशन में सिर्फ यूट्रस नहीं रहता, क्योंकि वो इतना ज्यादा वीकनिंग हो चुकी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इट इज अलोंग विथ सिस्टोसील और एंटेरोसील इवन, एंड सिस्टोसील इज मोर कॉमन in association with uterine prolapse in prosidentia, और रेक्टोसील भी इन्वॉल्व रहता ही है. सो क्लासिफिकेशन, मतलब यूटरस डायरेक्टली सीधे सीधे नहीं आता, वो इन्वर्टेड होती रहता है. तो फर्स्ट डिग्री में इन्वर्टेड फंडस अप टू द सर्विक्स, सेकंड डिग्री में बॉडी ऑफ यूटरस protrudes to cervix into vagina, and in third degree prolapse inverted uterus outside the vagina. इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री में, कि सर्वाइकल पार्ट अभी ऊपर की तरफ ही है फर्स्ट डिग्री में. तो डिग्री ऑफ प्रोलैप्स विजिबल ड्यूरिंग ओपीडी प्रैक्टिस, और इन्वेस्टिगेशन इसमें हेमेटोलॉजी कराते हुए रेक्टल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन, यूएसजी, एक्सरे एंड एमआरआई. कई बार इन्फेक्शन या और भी कॉजेज रहते हैं, तो एक बेसिक एग्जामिनेशन हमें देखना चाहिए. एंड डिफरेंशियल सिस्टिक स्वेलिंग इन द वजाइना वैसा तो नहीं है, या क्रोनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हो गया है, या हाइपरट्रॉफी हो गई है सर्विक्स की, एक मास्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कॉजेज भी हो सकते. तो ये जो हम लोगों ने मेथड यूज किया था, कि अगर टिपिकल प्रोलैप्स होगा तो वो कफिंग प्रोसेस या बियर डाउन एफर्ट्स के साथ वो और विजिबल प्रॉपर फॉर्म में होगा. तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंडीशंस नहीं है. ऑल अदर कॉजेज ऑफ लो बैकएक एंड यूरिनरी सिम्टम्स, virginitis, congestion of the vagina in the case of severe virginitis may give the feeling of fullness of vagina. तो ये सारे कंडीशंस रहते हैं सिमिलर टू प्रोलैप्स के, या तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होते हैं या ऑन एग्जामिनेशन भी कई बार कंफ्यूजन हो सकता है इफ यू आर अ बिगिनर. एंड द साइंस
Uterovaginal prolapse may be visible during inspection of vulva. In case of minor prolapse, it may become visible on staining. Rectal examination also differentiate between rectocele and enterocele. तो ये एग्जामिनेशन करेंगे तो डायग्नोसिस हमारी और क्लियर होगी कि किस डिग्री का प्रोलैप्स है, किस तरह का प्रोलैप्स है. पेशेंट कंप्लेन क्या लेते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन फॉर वजाइना और डिस्कम्फर्ट ऑन वॉकिंग, backache or dragging pain in the pelvis, dyspareunia, urinary symptoms, especially in the cystocele, difficulty in passing urine that elevate anterior vaginal wall for bladder evacuation. कि वो प्रोलैप्स के कारण कवर हो जा रहा है, इसलिए यूरिनेशन मिक्चुरेशन के टाइम इसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको एंटीरियर वजाइनल वॉल को एलिवेट करना पड़ता है. इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन लीड टू फ्रीक्वेंट डिजायर टू पास यूरिन. Urgency and frequency of maturation may also be due to cystitis. Painful maturation is due to infection. And stress incontinence is usually associated due to erythrocele and retention of urine. These are the symptoms that is presented by that female of prolapse. और management कैसे करना है? The management of uterine prolapse is described under the following headings. कि पहले तो prevention, जो हमने जो रीजंस दिखे थे उसको ही प्रिवेंट करना है, कि बियर डाउन अननेसेसरी नहीं लगाना है. प्रॉपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो रिजीम्स हैं उनको फॉलो करने हैं. फिजियोथेरेपी उसको लेना है. पेसिरीज अगर अर्ली डिग्री का है तो पेसिरीज आती हैं, या एकदम ही नहीं हो सकता तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको क्योर करते हैं. So what are the methods in prevention? Repeated childbirth with short intervals causes uterovaginal prolapse, and women should be advised to avoid pregnancies in quick succession labor. और फर्स्ट स्टेज में avoid bearing down. Breach of forceps delivery before full dilatation of cervix shouldn't be attempted. In second stage, avoid prolongation of this stage. ये proper midwifery या जो भी डॉक्टर्स हैं वो इसको किस तरह से हैंडल करती है. एंड परफॉर्म एपिजियोटमी इफ टीयर और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनेस पेयर. क्योंकि वो अगर एपिजियोटमी नहीं देने के कारण वहां से कंप्लीट वो बियर डाउन एफर्ट्स लगाए जा रहे थे, तो इसके कारण भी वहां पेरिनियल टीयर तो हो गई और इंटरनली भी ये प्रोलैप्स को ट्रिगर करेगा. And in third stage, avoid the Craig's method. Episiotomy or tears should be carefully sutured. And puerperia में treat chronic cough and constipation. Cough and constipation से एकदम ही बचना चाहिए फीमेल को. And avoid strenuous and exercises and standing or for prolonged time. ये नहीं कि डिलीवरी के बाद ही वेट लॉस प्रोग्राम उनका शुरू होना. हाँ, एक जेंटल वार्म अप और प्राणायाम एंड ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गुड, या कुछ योगासन भी आप देख सकते हैं, बट ऑन एडवाइस कि ऐसा नहीं कि हैवी एक्सरसाइजेस करनी. सस्टेनियस एक्सरसाइज एंड स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम शुड बी अवॉइडेड. फिजियोथेरेपी में अर्ली केसेस ऑफ प्रोलैप्स यूट्रोवाजिनल प्रोलैप्स आर हेल्प बाय पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस. कीगल एक्सरसाइज रहती है जैसे to contract the muscles of that side, particularly during puerperium and while waiting to undergo surgical treatment. Kegel exercises are used to tone up pelvic musculature. These exercises are done thrice a day for 20 minutes each. तो इसमें आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कीगल्स में कि वो मसल्स को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है. और अगर इस पोजीशन पे नहीं कर पा रही है पेशेंट, then in general sitting position you may advise. It is commonly prescribed to improve many conditions. How to lift pelvic floor and contact muscles? They can be done at any location, at home, office or in car. They have been proven effective in reducing urinary continence. इसका पर्पस क्या होता है? जैसे सपोज सबसे इजी वे समझाने का कीगल्स ये है कि पेशेंट को बोलना है कि कैसे आप द अर्ज टू मिक्चुरेट कंट्रोल करते हैं. व्हेन ब्लैडर इज फुल, सो हाउ यू कंट्रोल, मतलब उस तरह से मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके देखिए. अब इसके बाद आफ्टर एम्प्टीइंग द ब्लैडर, इसकी ये इंडिकेशंस भी कि फुल ब्लैडर में नहीं करना है. आफ्टर एम्प्टीइंग द ब्लैडर फिर उसको आप बोलिए कि वो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से उस एरिया को करे. एंड द 20 मिनट्स की 3 साइकिल्स.
और इस तरह से अगर एब्डोमिनल सपोर्ट देते हुए बाय हैंड्स या विद द पिलो करती है, तो फिर एक राउंड में प्रेशर टुवर्ड्स अपवर्ड्स एंड सेकेंड राउंड